Hello friends, good morning and welcome to in our class. And earlier we were discussing about the coordinate geometry and we will continue this topic today also. And I have mentioned two problems on your screen and we are going to making the solutions of these problems. Okay friends, in first one the prove that the given points आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब अपने को ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नाउ गिव इट एनी नेम ए बी सी और डी एंड इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से पी क्यू आर एस, कुछ भी रख सकते हैं, इट डजंट मैटर। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? We have to mention them continuously, A, B, C and D. So you have to mention let A equals to 1 and minus 2, B equals to 3 and 0, C equals to 1 and 2 and D equals to minus 1 and 0. It's a clear? Now we have to find out them. So first of all we have to find the distance of the AB, after all BC, after all CD and next one DA. It's a clear? Okay, so first of all we are going to talk about AB. What's your distance formula friends? The distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so what is the value of the A? 1 and 2. 1 and minus 2, value of B 3 and 0, value of C 1 and 2, value of D minus 1 and 0. It's a clear? Okay, now put the values. सबसे पहले x2. अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, when we are moving A to B, जब हम A से B पे जा रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप चाहें तो इस पे से मेंशन कर सकते हैं x1 y1 x2 y2 एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले भी आपको बताया। वैल्यूज पुट करने के x2 का वैल्यू है 3 minus 1, व्हाट्स अबाउट द y2 is 0 minus what is the y1, this is minus 2, so we have to put in a bracket, ठीक है, because this minus belongs to the formulation. Okay, now 3 minus 1 is 2, this is the 2 square minus minus plus. Okay, so what's about this one? 2 to the 4 and 2 to the 4, 4 and 4 8, that's why this is root 8. अब इसका वैल्यू root 8 आ गया। If you want to change in a simpler form, अगर आप इसको simpler form में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 2 into 2 into 2 8 हो गया। तो जिसका पेयर बन रहा है उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको आप चाहे तो 2 root 2 भी मेंशन कर सकते हैं। root 8 लिख दें, इट डजंट मैटर, 2 root 2 लिख दें, इट डजंट मैटर। इट्स क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC। अब फ्रेंड्स BC का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जब ये B से C को जा रहे हैं, what I told you, now you have to change them. Now this is x1, y1 and now this is x2 and y2. ठीक है ना? जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे उनको नंबर को चेंज करते जाएंगे। Now what is the x2? 1, x1 3 whole square, y2 is 2 and y1 is 0. Okay? 1 minus 3 minus 2 whole square, 2 minus 0 2 square। माइनस का जब भी फ्रेंड्स स्क्वायर किया जाता है माइनस वाले डिजिट का तो वो पॉजिटिव हो जाता है। व्हाई? बिकॉज माइनस मल्टीप्लाइंग विद माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 2, ओ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 4 एंड 4। अगेन वी हैव गॉट रूट 8 और 2 root 2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स अ क्लियर? तो ये आपके पास में फ्रेंड्स ए बी आ गया, बी सी आ गया। नाउ सी डी,
CD का वैल्यू फाइंड करना है। अब अगेन यू हैव टू चेंज, दिस इज x1 and y1 and now this is x2 and y2. Clear friends? Now what is the x2? -1. This is the minus of the formulation. And what's about the x1? 1. y2 0 minus y1. -1 and -1 -2. This is -2. 4 plus 4 is equal to √8 or 2√2. It's a clear? And last and final, we have to find out D. Okay friends? So this is D and this is D. Now there will be changes. अब ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और ये y2. Okay friends? Now put the value. What is the value of the x2? 1 minus -1 whole square -2 minus 0. माइनस एंड माइनस प्लस। देखिए इस एक्सरसाइज में हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये माइनस प्लस पे बड़ा फोकस करना होगा। अगर वो साइन थोड़ा सा भी अगर आपका चेंज हो गया तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो दैट्स व्हाई इट इज -2। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 4 2। अभी आप देखिए कि हमारे पास में दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू, दिस वन इज द थर्ड वैल्यू एंड दिस वन इज द फोर्थ वैल्यू। चारों वैल्यू सेम आ रही है। AB is equal to BC is equal to CD is equal to DE. Whenever a quadrilateral which have the four side equal is known as the quadrilateral स्क्वायर। क्या हम उसको स्क्वायर मान ले? यस और नोट दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब अपने पास में प्रॉब्लम हो गई कि सर हम इसको कैसे फाइंड आउट करें कि दिस इज द स्क्वायर और रोम्बस। अब इसको क्लेरिफाई करने के लिए वन थिंग मोर, ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्क्वायर है इसके जो डायगोनल्स होते हैं बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो अब हम इसके डायगोनल्स फाइंड करेंगे। तो डायगोनल एक का क्या नाम हो गया फ्रेंड्स? AC। डायगोनल AC। अब AC को फाइंड करने के लिए नाम क्या है? AC। देन A से C पे जा रहे हैं तो इट मीन दिस इज x1 and y1, x2 and y2। क्लियर? सो व्हाट इज द x2? 1 minus 1 whole square plus 2 minus -2 whole square, so 1 minus 1 equals to 0 and 2 minus minus plus। बार बार आपको बता रहा हूँ साइन पे बड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। 0 स्क्वायर 0, so it doesn't matter। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड? 16 और 16 का रूट कितना आ गया? 4। ये फर्स्ट वैल्यू आ गया डायगोनल AC की। अब डायगोनल हम लोग निकाल लेते हैं BD। ओके, सो दिस इज BD। तो BD के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? x1 y1 x2 और y2। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे मेंशन कर लें। इट्स क्लियर? नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। व्हाट इज द x2? -1, x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 0 minus 0। ओके, -1 and -3 -4। ये तो 0 है तो 0 से कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि माइनस वाले डिजिट का जब भी स्क्वायर करना है देन इट विल चेंज इन द प्लस। सो दिस इज √16 and what is the value of the √16? This is the 4। So now we also get diagonal AC is equal to BD। Earlier we have got all four sides are equal and now we have got the both diagonal AC and BD are equal। So that's way we can say that yes,
these vertices belongs to a square. It's clear? तो अब हम कह सकते हैं कि जो given points हैं all these points are the vertices of a square. ये स्क्वायर के vertices है. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है. पहले इनको कॉन्टिन्यूअस लिखना है. आप इसका नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, ABCD, PQRS, XYZ, व्हाट्सएवर, इट डजंट मैटर. लेकिन XY पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने XY की वैल्यू क्या लेनी है, तो XY आप उसको अवॉइड ही करें. ठीक है, सो दैट्स वे वी कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स. ओके फ्रेंड्स, इसी के जैसा मैंने एक दूसरा इक्वेशन और लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें हमारे पास में वेरिएबल्स का वैल्यू दे रखा है. अब यहाँ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं. डिजिट्स को तो सिंपली वो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब ये XYZ AB की फॉर्म में आते हैं तो बड़े कंफ्यूजन होते हैं. अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो लुक एट योर स्क्रीन प्लीज. अभी अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है फ्रेंड्स, ये प्रूव दैट the given points are the vertices of an equilateral triangle. अपने को बताना है कि ये कोई equilateral triangle के vertices हैं क्या, yes or no. Suppose that we have given it name ABC. Okay friends, and now A equals to small a and small a, B equals to minus a and minus a, and C is equal to minus root 3a and root 3. ओके फ्रेंड्स, ये गिवन है तो अपने को इसको क्या कर लेना है, अजम्पशन कर देना. लेट ABC इज अ ट्रायंगल. अब ये ट्रायंगल है, अब इक्विलैटरल है या नहीं है, इक्विलैटरल है कि नहीं है, ये तो हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा. अभी तो ट्रायंगल है. अब वही क्या करेंगे, अब इसकी तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, AB, BC और CA. Suppose that we are getting all three sides equal, then it is an equilateral triangle. But whenever the three sides are not equal, then it is not an equilateral triangle. तो ये तो प्रूव करने के बाद पता चलेगा. तो अभी हम लोग इसको assumption में क्या लिखेंगे, ABC is a triangle. ये सिर्फ एक ट्रायंगल है. Okay friends, तो first of all we have to find out AB. Formula earlier I have mentioned. अभी ये थोड़ी देर पहले लिखा था. So what is the formula? आपको सबसे पहले इनको x1 और y1 मान लेना है, x2 and y2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x2, व्हाट इज द x2? माइनस a. ओके, माइनस, ये माइनस क्यों? वापिस से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. इट्स अ क्लियर. First of all x2, what is x2? Minus. Okay, this is minus according to rule, so you have to put minus. x1 a. What's about the y2? A. Minus according to formula. y1, what is the y1? A. It's a clear? It's a clear? Okay friends. सॉरी, ये a और माइनस a है यहाँ. सो अर्लियर इट वाज a माइनस एंड माइनस. रिपीटिंग अगेन, दोबारा चेक करता हूँ. y2 सॉरी, क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से y2 क्या है, माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस. ओके फ्रेंड्स, अब ये माइनस है और माइनस है, यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. अक्सर इसको मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर लिख देते हैं. यह मल्टीप्लिकेशन नहीं है भैया, ये माइनस और माइनस का डिजिट है. एंड वन थिंग यू शुड नो, माइनस माइनस का डिजिट प्लस तो हो जाता है, लेकिन साइन क्या रहता है, साइन उसके साथ माइनस का रहता है. ठीक है, वो माइनस ए और माइनस ए माइनस 2. देखो ये जो वेरिएबल्स अभी आते हैं x, y, z, a, b, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, x का मतलब कभी उसको 1x नहीं लिखते. x मीन होता ही 1x है. ठीक है, 2x होगा तो उसके साथ में 2 मैनेज करेंगे. स्क्वायर, अब यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस माइनस,
ये भी -a और -a -2a। अब फ्रेंड्स इसका स्क्वायर करेंगे, 4a² + 4a², 8a²। ओके, आप चाहो तो 8a² लिख सकते हैं, और अगर आप इसको और सिंपलीफाई करना चाहें तो आप अर्लियर अभी अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि 8 का रूट क्या होता है 2√2, और a² का क्या हो जाएगा a। इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2a√2। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये भी चले। यू हैव टू कोट AB, नाउ BC। Again you have to change x1, y1, x2 और y2। ठीक है फ्रेंड्स। BC x2, what is x2? -√3a, x1 -a, minus। Okay friends, next one √3a and minus a whole square। Okay friends, this is -√3a minus plus whole square, this is √3a minus plus। क्लियर? अब इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। a, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर इसको यहां लिख दिया, ये नेगेटिव है इसको यहां लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां हमारे पास में ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बन गई। कौन सी वाली? ये दिस वन, a minus b whole square and a plus b whole square। Clear? So what is the a minus b whole square? a square minus 2ab plus b square and a square plus 2ab plus b square। अब बहुत सारे स्टूडेंट कई बार क्लास में पूछते हैं, सर आपने इसमें b तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, a मीन होता है फर्स्ट डिजिट और b मीन सेकेंड डिजिट। अब इसको किस तरीके से मेंशन करना है वो देखिए। पहले ये माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करना है यहाँ, ठीक है। a² यानी फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर -2, a मींस फर्स्ट डिजिट, b मींस सेकंड डिजिट, b² मींस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। यहाँ सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है, a² -2, ये a, √3a, ये b, और ये सॉरी प्लस का है, या प्लस आ जाएगा √3a का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको सिंपलाइज करते हैं। दिस इज a², तो ये a² रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को √3 से किया 2√3, a मल्टीप्लाई बाई a², √3 का स्क्वायर। अर्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जब भी रूट के किसी भी डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है। √5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 7। ठीक है, तो यहाँ कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a²। सिमिलरली आगे वाली टर्म को करना है, a², इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2√3a² + 3a²। क्लियर? अब फ्रेंड्स यहां पर ये जो डिजिट है इसको प्रॉपर वॉच कीजिए, दिख रहा है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और सेम नंबर है। जब सेम नंबर होता है, एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब रिमेनिंग क्या बच गया? दिस इज द a² + 3a² + a² + 3a²। And what I told you, a² means 1a². So this is 1 and 3 4 and 1 5 and 3 8. So that's where this is 8a². Earlier what we have got?
8a square, and now we also got 8a square. Okay, and now we have to find out the third side. अब अपने को थर्ड साइड निकालना है फ्रेंड, CA. Whenever we are going to find out the CA, अब इनको चेंज हो जाएगा. Now this is x1 and this is y1. This one is x2 and this is y. Okay, x2. What is the x2? A minus root 3a whole square. y2. What is y2? A minus root 3a. ठीक है फ्रेंड्स. Now minus minus plus a plus root 3a whole square plus a minus root 3a whole square. ठीक है. अब 2 डिजिट के स्क्वायर्स आ गया. अब वापस वो उसी कंडीशंस में आ गया. पहले तो क्या आ रहा था फ्रेंड्स, ये आ रहा था a माइनस बी और a प्लस बी. इसमें आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी. यानी ये जो टर्म है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पे चला गया, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म पे चला गया. तो सेम वो का वही नंबर हम लोगों ने यहाँ लिख दिया. a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2, ये a बी फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर. फिर इसमें भी वैसे ही a स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और ये सेकंड डिजिट का स्क्वायर. इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं फ्रेंड्स. a स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 रूट 3 a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर इसको इससे कैलकुलेट किया 2 रूट 3 a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर. वही सेम डिजिट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया. रिमेनिंग क्या रह गया? a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर. So that's why this is 1 3 4 4 1 5 4 3 8 8a square. So friends, now we have got all three values are equal. So now AB equals to BC equals to CA equals to 8 root 8a square. तीनों की वैल्यू सेम आ रही है. That's where these vertices belongs to an equilateral triangle. तो हम यहाँ लिख सकते हैं so ABC is an equilateral triangle. Hence proved. ठीक है फ्रेंड्स. तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आती हैं. तो आप इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. मैंने आपको 2 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके बताए हैं. दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ. और ये जो एक्सरसाइज है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक डिस्टेंस फार्मूले का, एक सेक्शन फार्मूले का. तो ये डिस्टेंस फार्मूले वाले क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं फ्रेंड्स. ठीक है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. जो टॉपिक मैंने समझाया है वो शायद आप उसको अच्छी तरीके से कैरी कर रहे होंगे. वीडियोस को आप बार बार देखते रहें जिससे आपको बहुत अच्छे से इस पे कमांड हो सके. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट.